trying to take it to people who can make a change in the. Let me start at the beginning. In school, I was a studious, conscientious little girl. I was not the prettiest one. I got lucky, I got selected for a role. I started to work in films. Soon after, somebody predicted, and it came in the papers about, predictions happen and they speak of all actors, actresses. And there, a little thing like that, and they'd written for me, she will work for a long time in the movies. I was like, really? I mean, I really will be there for a long time. I didn't even know I'd last 20, 25 days. I had no idea. I was just going with the flow. I was taking my chances. Years flew by. I did films, good, bad, ugly. I laughed. I cried. I learned a lot along the way. Jai happened to me, marriage happened to me, and my life changed. My children came along, and my outlook changed. Before I had children of my own, I used to think these short little pesky little things running around were just, they could be ignored. But once I had my own children, I started looking at other children on the streets, and wondering about their life. I visited a school which looks after, educates, and helps families of poor, special children. And I sobbed when I saw all of them. And I thanked God for the blessings I had. I lost some very close family members. And I was shattered in many ways. And I looked for anchoring. And that seeking took me towards spiritualism. Years again flew by, cropping up of antennas and towers around my house, close proximity, suddenly made me think about antennas, radiation, mobile phones, and drew me into another little world, totally different from films, from family. Suddenly I was in a very technical part, researching, finding out, and giving presentations. So yes, I mean, I've had a varied life. It's been wonderful. What you see in front of you, yes, is a very, I must say, rounded person now. The edges have been slowly worn out with life's experiences. I saw that film and I'm quite impressed with my own self. I didn't know there's so much work had gone into this. Thank you for that beautiful film. And looking at that, I just felt, I remembered something that I'd read. It said, one day your life is going to flash past your eyes. Make sure it's worthwhile watching. So I thank you who watched me through my years of films. I thank my family for having supported me always. And I thank God for all His blessings and for all the experiences, good, bad, ugly, which have shaped me and brought me here in front of you today. And I'm extremely grateful to all of you for having acknowledged me and honored me today. I'm truly grateful. Thank you very much. There was just one thing that I wanted to say to Induji. When she was speaking of her mother, I'd read something beautiful and it said, God couldn't be everywhere, and that's why He made mothers. And yes, listening to Mom, having a mother is the most beautiful blessing. So, well, all the very best. And yes, if you do give me some time, I would happily give you a little presentation on radiation a little later this evening, which I'm sure
put a lot of thoughts into your mind and awaken a lot of people. Okay? Thanks. ये जो आपको आशा अवार्ड मिला है वो किस चीज़ के लिए था? I think for vocational service उन्होंने ये कहा and generally for being who I am, maybe an actress, entrepreneur, social worker, radiation activist. I don't know किसके लिए दिया, किस एक चीज़ के लिए दिया या सभी के लिए दे दिया. एंड आपने हमेशा लोगों को इन्फॉर्म किया, इत्तला किया, एक वार्निंग दी है कि रेडिएशन कितनी ख़राब हो सकती है उनके जीवन के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए. हाँ, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, तो मैं उसकी तैयारी करके आई थी और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था. देयर वाज एन अवार्ड बीइंग गिवन, सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ नॉट द ओकेजन टू टॉक अबाउट रेडिएशन. बट हाँ, मैं रेडिएशन के बारे में बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि आई थिंक लोगों में जानकारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक के पास, हर बच्चे के पास एक फ़ोन है, हर बड़े के पास एक फ़ोन है, हर औरत के पास है, हर मर्द के पास है, अमीरों के पास है, गरीबों के पास, सबके पास एक फ़ोन है. मगर इसको इस्तेमाल थोड़ा सा रिस्ट्रेंट के साथ करना चाहिए. ऐसा नहीं कि लंबी घंटों तक बातें करते रहें. इससे जो रेडिएशन होती है उससे हानि पहुंच सकती है, तो आप प्लीज़ उसे एक खिलौना मत समझिए. ये मेरा कहने का मतलब है. तो मैम आपने कहा आज आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आई थी इस चीज़ को लेके, तो जो आपकी सोच है, आप जो इस चीज़ को सपोर्ट करें, कहाँ तक आगे जाती रहेगी? आप हर एक कंट्री में इसको फैलाते रहेंगे या कोई नया प्रमोशनल तरीका सोचा है आपने इस? नहीं, मैंने कुछ 2 साल पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशंस करना शुरू कर दूँगी. ये सब ज़िंदगी के साथ मेरे जुड़ता गया और मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ. आज जब मैं ये बातें कर रही हूँ आपसे, देयर इज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ एल गोर के साथ मिला था. प्रेसिडेंट ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अबाउट 8 years ago. एल गोर, सो उनके साथ शी वॉज द को-विनर. उनका नाम है डॉक्टर डेविस. वो इंडिया आई हुई हैं. उन्होंने रेडिएशन के बारे में बहुत चर्चा की हुई है, बहुत रिसर्च की हुई है. एंड शी केम एंड शी मेड प्रेजेंटेशंस. सो उनके साथ हम हेल्थ मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं दिल्ली परसों, नहीं 13 या 14 तारीख को. सो वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू पीपल हु कैन मेक अ चेंज in the norms in this country. क्योंकि रेडिएशन 2 तरीके से होती है, आपके सेल फोन से होती है और दूसरा एंटेना से होती है. तो ये रेडिएशन कोई मॉनिटर नहीं कर रहा हमारी कंट्री में कि कितनी हो रही है रेडिएशन. और यहाँ से एंटेना उखाड़ के कहीं और लगा देना, उसमें भी कोई हल नहीं है. सो वन नीड्स टू अप्रोच द गवर्नमेंट टू मेक सम नॉर्म्स अबाउट इट, some kind of rules, regulations जिनको follow किया जाए. So we are trying to work towards that. और लोगों में भी जानकारी बढ़नी चाहिए, इसलिए मैं कभी प्रेजेंटेशंस करती हूँ. मैम, अगर आपकी कमबैक की बात की जाए तो आई वी वांट टू सी यू सून ऑन द स्क्रीन. हाँ जी, बिल्कुल. आई विल बी बैक अगेन एंड अगेन, क्योंकि एक ही काम तो आता है ज़िंदगी में, एक्टिंग, वो तो करनी पड़ेगी. सो देयर इज़ अ लवली स्क्रिप्ट विच हैज़ कम टू मी रिसेंटली. मैं पढ़कर बहुत खुश हुई उसे. सो आई विल बी एक्टिंग इन दैट एंड बस जस्ट गिव मी अ वीक एंड देन आई कैन मेक द अनाउंसमेंट. So are we even going to see you sooner or later into the television screen, since there are like many Bollywood actors who are making their comeback from television? So what have you done? वेरी रिसेंटली आई वॉज एंडोर्सिंग सोनीपल. सोनीपल एक नया चैनल है जो कि अभी शुरू हुआ है, 1 सितंबर को लॉन्च हुआ था. सो मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ. तो मैंने भी उन्हें यही कहा कि एक होता है कि आपको एंडोर्स करूँ, जो कि मैं बड़ी आसानी से और बहुत खुशी से कर सकती हूँ, मगर प्रेस ज़रूर कभी पूछेगी कि भाई आप भी तो कोई प्रोग्राम करेंगी इस चैनल पर. सो मे बी ऑन सोनीपल आई वुड कंसिडर डूइंग अ नाइस स्पेशल एंटरटेनिंग बट मोर देन एंटरटेनिंग एलिवेटिंग प्रोग्राम. मैं ज़रूर कुछ करूँगी, मगर कुछ ख़ास करूँगी. मैं कोई आम चीज़ टेलीविज़न पर नहीं करूँगी.
Since आप एक ब्यूटी पैजेंट रह चुकी हैं, so what is fashion according to you? Since you have lived 80s, 90s and now is the millennium, so what do you think about fashion? Fashion changes with seasons. Colors change with seasons. Fashion के बारे में what's trendy, what's in, what's out, that's fashion. मगर I think at by my stage it becomes more about style. कि आपको क्या सूट करता है, आप सीख जाते हो, आपका क्या स्टाइल है जो कि मोर लास्टिंग है. सो इन माई ओपिनियन आई थिंक क्लासिक्स दे लास्ट फॉर एवर. गुड कट्स, गुड फिनिशिंग, well made clothes of good fine materials, real materials. This is what I aspire to wear. And that's become my kind of style. Fashion तो आता है जाता है. जी आपने कहा कमबैक करने वाली हैं बॉलीवुड में. अरे आप कम बैक कैसे बोल रहे हैं? मैं हर साल कम बैक करती हूँ. तो वो सलमान खान की फिल्मों के साथ में विभाजित क्यों है? है? नहीं, ये तो मैंने कभी सुना नहीं है. आपसे सुन रही हूँ. Ma'am, Diwali wishes दे दीजिए and tell us how are you going to celebrate your birthday? And I have a special Diwali, sorry. मेरा बर्थडे. Diwali. No, I wish all of you, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, खुशियाँ मनाइए, पूजा करिए, पटाखे मत जलाइए और अगर जलाएं तो कम ही जलाएं क्योंकि आजकल इतनी पोल्यूशन हो रही है, क्यों उसे और बढ़ाते हैं. तो मज़े करिए एंड बी हैप्पी टुगेदर विद योर फैमिली. एंजॉय, सेलिब्रेट. जोई जी एक स्पेशल शो के लिए सवाल पूछना था. अमिताभ सर का जन्मदिन आ रहा है एंड एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा अधूरा फील करता हूँ कि मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म में कभी पियानो नहीं बजाया, कभी कुछ और चीज़ नहीं की. तो आपके हिसाब से उन्हें ऐसा क्या ऐड ऑन करना चाहिए अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में जो जिनसे अधूरापन दूर हो जाए आपके हिसाब से? वो मुझे नहीं पता पर मैंने सुना है अमित जी सितार बजाते हैं, सालों से बजाते आए हैं. मैंने कभी उन्हें सितार बजाते कहीं सुना नहीं है. सो आई वुड लव फॉर हिम टू कम forward with that part of him. I'm sure he's very talented and बहुत खूबसूरत बजाते हैं. Thank you.